देखिए यीशु मसीह जब जीरा when Jesus was living, he was living under the Jewish covenant in a carnal body. और जो मसीह जो जी रहे थे वो यहूदियों के परंपरा के हिसाब से जी रहे थे अपने एक शारीरिक शरीर में, Right? So he got tired वो इसलिए वो थक गए थे because he was carrying the அவர் ஆண்டவரோட மகிமையை இந்த சரீரத்துக்குள்ள சுமந்துட்டு இருந்தாரு. क्योंकि परमेश्वर की महिमा को वो अपने शरीर में वो उठा रहे थे. இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுறதுக்கு முன்னாடி எந்த சரீரமும் ரட்சிக்கப்படல. और जो मसीह जो है वो मर के जब तक नहीं हुआ तब तक भी एक भी शरीर वाले लोग जो है उन्हें उद्धार नहीं पाए. Oh my God, I need 2 more days यार. No, but I will finish. இந்த சரீரம் என்ன பண்ணல, மறுரூபம் ஆகல. அவர் ஒரு யூதனுடைய சரீரம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சரீரத்தோட தான் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தாரு. அதுக்குள்ள ஆத்மா வச்சு தான் அவ்வளோ வேலையும் செஞ்சு காமிச்சாரு. और जो है जब रूपांतर शरीर आने से पहले जो है वो एक साधारण शरीर में थे और वही शरीर में उन्होंने सारे कार्यों को किया. But he went to hell. Jesus பாதாளத்துக்கு இறங்கி பிசாசை ஜெயிச்சு சிலுவையில் எல்லாத்தையும் முடிச்சு பரலோகத்துக்கு ஏறினதுக்கு அப்புறம் வேற. और जो है वो मसीह जो है वो पाताल में गए, शैतान की सर कुचले और क्रूस में सारे चीज करने के पश्चात वो मरे. और जब स्वर्ग गए तो उसके बाद जो हुआ वो पूरा अलग है. அப்ப என்ன ஆச்சு, ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூணுமே புதுசா மாறிடுச்சு. तब क्या हुआ, आत्मा शरीर और प्राण जो है तीनों भी अलग हो गया. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. சிலுவைக்கு முன்னாடி இருந்த இயேசுவுக்கும் சிலுவைக்கு அப்புறம் இருந்த இயேசுவுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சரீரம் மறுரூபமாக்கப்பட்டது, உயிர்த்தெழ பண்ணப்பட்டது. और मसीह का क्रूस के पहले का और क्रूस के पश्चात का एक ही जो फर्क है कि पहले का जो शरीर था वो साधारण था, बाद में रूपांतर शरीर मिला और यही फर्क है. हालेलुया, हालेलुया. Now the Bible writes, as he is, so are we in this world. 1 यूहन्ना का 4 का 17. और 1 यूहन्ना 4 में 17वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है. पढ़िए, एक बार पढ़िए. आगे पढ़ेंगे हम. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन ही आओ, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है. हालेलुया, आमीन. सीधा सीधा लिखा है. वहां it is just as clear. இது வந்து அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படி இருக்கிறோம்னு எழுதல, எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி இருக்கிறோம்னு எழுதி இருக்கு. वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि जैसे वो थे, लेकिन ऐसा लिखा है जैसा वो है वैसा हम भी है. हालेलुया, हालेलुया. Paul knew this. பவுலுக்கு இது தெரியும். और पौलुस को ये बात मालूम था. हालेलुया. हालेलुया. அதனால தான் எவ்வளவு ஓடினாலும் பவுல் டயர்ட் ஆகல. इसलिए पौलुस जितना भी भागे वो थका नहीं. Because ஏன்னா அவர் அவருடைய ஜீவனை வச்சு ஓடல, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவுடைய ஜீவனை வச்சு ஓடினாரு. क्योंकि वो अपने जीवन से दौड़ा नहीं, लेकिन पुनरुत्थान हुए मसीह के जीवन से वो दौड़े. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ஆனா கூட ஓடுனவங்கலாம் அவர் ஓட்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஓட முடியல. लेकिन उसके साथ जो लोग भाग रहे थे वो उतनी तेजी के साथ दौड़ नहीं पाए. हालेलुया, हालेलुया. அப்ப சொன்னார், சரி மும்பையில் மீட்டிங் முடிஞ்சிச்சு, அடுத்தது வந்து சென்னையில் மீட்டிங் இருக்கு, நாங்கள் போகிறோம், நீங்கள் ஒரு 2 நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வாங்க. और तभी उन्होंने कहा कि मुंबई में जो है ये मीटिंग समाप्त होने वाला है, अभी अगला जो है चेन्नई में होगा, लेकिन आप लोग एक काम करो, 2 दिन विश्राम करके बाद में आओ. हालेलुया, हालेलुया. ஏன்னா பவுல் கூட இருந்த பசங்கள்லாம் கொஞ்சம் பவுல் அளவுக்கு அந்த உயிர்த்தெழுந்த ஜீவன்ல வாழ மேபி பழகலையா இருக்கும். और ऐसा हो सकता है कि पौलुस के साथीदार जो है वो पुनरुत्थान की मसीह की जीवन को न जीते हो. समझ में आ रहा है?
அதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வியாதியில இருந்தாங்கன்னு என்ன பண்ணக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. और उसके आधार पर आप ये मत बोलना कि वो बीमारी थे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன், யாராவது வருவாங்க உங்ககிட்ட. और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ लोग आपके पास आएंगे. நம்ம சும்மா இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாரும் சும்மா இருப்பாங்க. जब நம்ம तक- வச்சு ஏதாவது வேலை நடக்குதுன்னு வச்சுக்க, நம்மளை குழப்புறதுக்காகவே வருவாங்க. और जब तक हम चुप है लोग चुप रहेंगे, लेकिन हमारे द्वारा प्रभु ने अगर कोई कार्य किया तो लोग हमें कंफ्यूज करने के लिए वहां पर आ जाएंगे. समझ में आ रहा है? सही है. Yes. हमको थोड़ा कंफ्यूज करना उतना ही है. But when these scriptures are in you, you will not be confused. और जब आपको ये वचन आपके अंदर रहेगा तो आप में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. 2 Peter 1:8 में लिखा है, for if these things be in you and abound, they will make you neither empty nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. दो पत्रस 1:8 में लिखा है, जब तक ये वचन आपके अंदर रहेगा तो आप रिक्त नहीं रहोगे, न फलवंत न बिना फल वाला रहोगे, क्योंकि मसीह का समझ आपके अंदर होगा. हालेलुया. हालेलुया. ताकि ये सब आप लोग पढ़ो, मसीह का समझ आपके अंदर आए और आप फलपन हो जाओ, और ये बोल रहा है वो बोल रहा है करके मत हिलो. हालेलुया. आमीन. थैंक यू जीसस. नाउ योब, जॉब सिकनेस, योब का जो बीमार था, 21:31 में है. ये बहुत बहुत खास बात है. ये भी आप अपने स्टडी में कर लोगे, मैं बस इसका हसर क्या है वो बोलता हूँ. राइट. 31. योब 1:12 बस पढ़िएगा. अय्यूब यहोवा ने शैतान से कहा, हम्म. सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है. ஹல்லேலூயா. யோகுவா ने क्या कहा था, பாரு என்னெல்லாம் அங்க இருக்கோ அது எல்லாமே உன் கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு கடவுள் யார்கிட்ட சொல்றாரு, சாத்தான் கிட்ட சொல்றாரு. और यहोवा ने शैतान से कहा, देख उसके पास जो कुछ है वो मैंने तेरे हाथ में दे दिया. ऐसा नहीं बोला. ऐसा नहीं बोला. तो सॉरी. Hallelujah. Behold, all that he has is in thy power. उसके हाथ में है, वही लिखा है. हाँ? हाथ में है. देखिए, நம்ம இப்ப வாழ்ற வாழ்க்கை வேற, யோபு வாழ்ந்த வாழ்க்கை வேற. हमारा जो अभी जीवन है वो अलग है, हमारा जो जीवन है वो अलग है, और अय्यूब का जीवन जो था वो अलग है. யோபு வாழ்ந்தது ஆபிரகாம் கிட்ட ஆண்டவர் பண்ண கவனன்ட்டுக்கு முன்னாடி. और अय्यूब जो था, जो जीवन था, वो अब्राहम की वाचा से पहले वाला जीवन है. மோசே கிட்ட பண்ண கவனன்ட்டுக்கு முன்னாடி. और मूसा के साथ जो वाचा बांधा था उसके पहले वाला वाचा है, ரொம்ப ரொம்ப முன்னாடி. और बहुत बहुत पहले. ஆனா लेकिन ஆதாம் கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறம். आदम जो है नीचे गिरने के पश्चात. सही है, करेक्टா? सही है. ஆதாம் கீழே விழுந்தப்ப என்ன பண்ணா, और இவன் கையில आदम, கொடுத்த எல்லா அதிகாரத்தையும் பிசாசு கிட்ட இழந்துட்டான். கரெக்டா? और जो आदम जब नीचे गिरा तो क्या हुआ, वो अपने सारे अधिकार जो है शैतान से हार गया. கரெக்டா? सही में. ஆண்டவர் இந்த பூமி இதுல உள்ள எல்லாத்தையும் யார் கையில கொடுத்திருந்தாரு, ஆதாம் ஏவாள் கையில. ஆண்டுக்கோ, அனுபவிச்சுக்கோ, நல்லா இரு அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாரு. ஆனா இவன் என்ன பண்ணிட்டான், ஒரு பழம், ஆண்டவரே இது ஒண்ணு மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு இழந்துட்டான். और जो है आप आदम और हवा को परमेश्वर ने ये सारी पृथ्वी की अधिकारी उन्होंने दिया था, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, एक छोटा सा फल मैं खा लेता हूं ऐसे बोलकर वो खाकर आज्ञा की उल्लंघन किया. கரெக்டா? सही है. அப்ப இப்ப அதிகாரம் யார் கையில போயிடுச்சு, और अधिकार अभी किसके पास गया, शैतान கையில போயிடுச்சு. शैतान के पास गया. இப்ப இயேசு வந்து மரித்து உயிர் தெழுந்து இங்க பாரு மரணம் எல்லாத்தோடைய சாவி என் கையில எடுத்துட்டேன், நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்ற வரைக்கும் இந்த பூமியோட அதிகாரம் யார் கையில தான் இருந்துச்சு, சாத்தான் கையில தான் இருந்துச்சு. और जब तक मसीह इस देहधारी बनकर आए और सबसे जीत कर, देख मैं मरने और सारी चाबी की गुच्छी मेरे पास है ऐसा बोलने तक ये अधिकार किसके पास था, अगर ऐसा बोलेंगे तो शैतान के पास ही था. अगर ऐसा बोलेंगे नहीं वैसा ही था. वैसा ही था. सॉरी. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्रभु सबको आदम और हव्वा के हाथ में दिया, इन्होंने शैतान के हाथ पर हवाले कर दिया. मतलब देख व्हाट चीटेड, वो उसके चाल में आ शैतान गए. धोखा दे दिया, शैतान धोखा दे दिया और छीन लिया उसके हाथ से. तो उसके बाद जब तक यीशु मसीह आया, मुर्दों में जी उठा और बोला
मृत्यु हो रहा है, ये इसका चाबी मेरे हाथ में करके बोलकर जब तक वो बोला सब कुछ खत्म हो गया बोला, उस तक इस दुनिया किसके राज्य में था? शैतान के राज्य। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह कई बार बोलते समय बोलते थे इस दुनिया के राजा आ रहा है, इस दुनिया के अधिपति जैसा बोलते, सही है। பட் लेकिन ஆதாம்ல இருந்து இயேசு வரைக்கும் மோசே இல்லை வேற எந்த பரிசுத்தவான் எடுத்துக்கிட்டாலும் எல்லாரும் பிசாசோட ஆளுகைக்கு கீழே ஒரு விதத்தில் கடவுளோட ஒரு கனெக்ஷனில் வாழ்ந்தாங்க. और जो है अगर आप आदम से लेके यीशु मसीह तक आप देखोगे तो मोसे या कोई भी अलग और भी संत हो तो परमेश्वर के साथ रिश्ता, शैतान के नीचे ही परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाया. கடவுள் இருந்தார். இப்போ ஒரு ராஜா இருக்கிறாரு, இன்னொரு ராஜா கொடுக்குறாரு. एक राजा है, ये दूसरा एक राजा को सब कुछ दे रहा है, तुम ये सब संभाल दो, मैं जो इधर है मैं संभालता हूँ, ऐसे एक राजा को रखता है. ये राजा क्या करता है? आ जाओ, कम हियर, मैं परमेश्वर हूँ, खुदा हूँ. ये कौन है? आदम है. ये कौन है? शैतान. ठीक है, ओके. तो ये राजा क्या कर रहा है? इनको राजा बनाकर पृथ्वी तुम संभालो बोल रहा है. तो अभी ये क्या कर रहा है? धोखे में इस पर दे रहा. ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं? इसकी जगह पर आ जाता है. अभी ये क्या हो जाता है? इसके नीचे हो जाता है. सही है, इसके गुलाम बन जाता है. तभी इसके नीचे कोई भी आ जाए, सारे कौन है? इसके गुलाम है. तो अभी क्या करना है? ये राजा कुछ करना है, इसलिए ये क्या करता है? ये इधर आकर यहाँ किसी को पकड़कर इसके जीवन उधर दे रहा है. वो था यीशु मसीह. जब वो आया, वो इधर कनेक्शन है थोड़ा सा, इसको लेकर इसके ऊपर दबाता है, तभी जीत हो रहा. सही है. तो ये काम होने तक जो भी आया था, दाऊद जो भी था, सारे जैसे भी मुझसे थोड़ा सर ये बहुत कर रहा है सर, अच्छा तुम्हें तय है तो मैं तुम्हारे साथ एक कवेनेंट बना देता हूँ, हम तुम्हारे साथ ऐसे रहेंगे बोला था. पर फिर भी ये क्या बोलेगा? देखो तुम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है. सही है, उसके पास दिया, उन्होंने मेरे पास दे दिया, तो अभी आप क्यों वहां जा रहे हो? बोलो सही है, प्रभु तो लीगली करेक्ट है. सही है ना? तो ये सब बोलने का मौका इनको था. अभी इस मौके को यीशु मसीह ने नाश कर दिया. अभी हमारे खिलाफ शैतान बोल नहीं सकता, पर याकूब के काल समय में शैतान मसीह के पास आकर हमारे खिलाफ बोल सकता था. तब उनका जवाब क्या होगा? वो तुम्हारे हाथ में है. सच है, वो ऐसा नहीं है ठीक है मैं तुम्हारे हाथ में दे देता हूं. ये जो वचन नहीं पढ़ते हैं ना, ये ऐसा प्रचार करते हैं. यीशु मसीह प्रभु क्या किया था? याकूब को लेकर हाथ शैतान के हाथ में दे दिया. वैसे भी तुम गलती करो, तुम्हें लेकर उसके हाथ में दे दे. समझ में आ रहा है? दैट्स नॉट द ट्रूथ. ये सच्चाई नहीं है. अच्छा, ये शैतान नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी जिम जैसे हो जाएगा. ठीक है, आप लोग देखो. क्लियर? कोई डाउट नहीं है? ग्रहण कर लो, पढ़ लो. ठीक है, इसीलिए बोला था तुम्हारे हाथ में. तो फिर शैतान आया, जो भी करना था कर दिया. हालेलुया. बट लेकिन ஷேத்தான் பிசாசுக்கு யோபோட வாழ்க்கையில எப்படி வாய்ப்பு கிடைச்சது? और शैतान को अय्यूब के जीवन में उसको कैसा मौका मिला? அது எங்க இருக்கு? யா யோபு 3:25ல பாத்தீங்கன்னா, இப்போ டோன்ட் ஓபன் யுவர் பைபிள், ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் மீ, வி ஆர் லூசிங் டைம். யோ 3ல பாத்தீங்கன்னா நான் பயந்த காரியம் நேர்ந்ததே அப்படினு சொல்லிருக்கு. और अय्यूब 3:25 में लिखा है, मैं जिसके लिए मैं डर रहा था वो मैं मेरे ऊपर आया. யோபு வந்து நிறைய என்ன பண்ணா? பலி செலுத்தினா, இதெல்லாம் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தான். ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் பலி செஞ்சுட்டு இருந்து எதனால செலுத்தினா? என் பிள்ளைங்களுக்கு எதுவும் தப்பு வந்துடக்கூடாது, என் பிள்ளைங்க எங்கெல்லாம் போகிறாங்க, பார்ட்டி பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க, தப்பு வந்துடக்கூடாதுன்னு ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்தியிருந்தான். யோபு கிட்ட பலி செலுத்துன்னு ஆண்டவர் எப்பயுமே கேட்கல.
परमेश्वर ने अय्यूब से कभी बलि मांगा ही नहीं, लेकिन अय्यूब जो है बोला कि मेरे बच्चे लोग पार्टी कर रहे हैं, तो उसके लिए शायद कोई गलती किया होगा, इसलिए वो क्या करता था, बलि चढ़ाता था। நீங்கள் அதை படித்தா கிளியராக தெரியும். என் பிள்ளைங்க ஒரு வேளை தப்பு செஞ்சுருப்பாங்க, நான் ஆண்டவருக்கு என்ன பண்ணணும், பலி செலுத்தணும், அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். उसको लगा कि जो है मेरा बच्चे जो है गलती किया होगा, तो मुझे परमेश्वर को बलि चढ़ाना है करके वो बलि चढ़ा रहा था। அதே மாதிரி அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும், இவன் வந்து அது போயிடுச்சுன்னா இது போயிடுச்சுன்னா எல்லாம் டப் 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 டப்னு பட்டாசு வெடிச்ச மாதிரி, ஏதாவது பலூன் வெடிச்ச மாதிரி எல்லாம் வெடிச்சிருச்சு. और कुछ लोग आए, बोला कि ये गया वो गया वो गया, जैसा कि फटाका फूटता है वैसा सब कुछ फट गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। கண்ணை மூடி திறந்துல எல்லாம் போயிடுச்சு. और आंख बंद करके खोलने तक सब कुछ चले गया। நமக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க, எப்படி போச்சு, கடவுள் எடுத்துட்டாருன்னுவாங்க. और लोग कहते हैं कि कैसा हुआ, कि बोलेंगे कि परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया. इधर देखे. हाँ, समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर ने प्रभु से कुछ नहीं लिया, योब से योब से कुछ नहीं लिया. जिस जमाने में वो जी रहा था, उस जमाने का प्रभु कौन था? शैतान था. तो फिर से भी प्रभु उनका इतना आशीष दे रहा था, पर यहूब डर में था, डर के जी रहा था. डर के हम लोग, कई लोग डर के प्रार्थना कर देते हैं, यह ना हो जाए प्रभु, वो ना हो जाए. मैं बोलता हूँ वही होगा. कुछ जगह पर डर है, विश्वास नहीं है. हालेलुया. हालेलुया। तो फिर யோப் ने क्या कर दिया, ஒரு இடத்துல யோப் எழுதிப்பா, ஐயோ சாரி ஆண்டவரே, நான் சும்மா புத்தி கெட்டத்தனமா. காட் இஸ் ஆஸ்கிங் ஜாப். ஒரு இடத்துல ஆண்டவர் கேட்கிறாரு, புத்தி கெட்ட முட்டாள்தனமான பேச்சு பேசுறவன் எவன்டா அப்படின்னு கடவுள் கேட்பாரு. படிங்க அதை. और एक जगह पे परमेश्वर अय्यूब को पूछता है कि पागलपंती वाला बात ऐसा कौन कर रहा है। படிச்சிருக்கீங்களா? ऐसा कभी पढ़ा है आपने? 42:3. और आओ हम अय्यूब 42 में 3 में पढ़े। ஓகே, அதுல எழுதிருக்கு. ஓகே, புரியுதா? அதுக்கப்புறம் யோப் என்ன பண்ணிடுறான், சரி சாமி நான் சொன்னதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சரி பண்ணி வந்துடுறான். அதுக்கப்புறம் யோபு தான் சொல்லியிருப்பான், கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்துப்பார். அது ஒரு பாட்டு கூட இருக்குல்ல. और जो है अय्यूब ने बोला कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। என்ன பாட்டு அது? He give and take away. கேட்டது இல்லையா? He's give and take away. என்னவா? ஆண்டவர் கொடுப்பாரா, ஆண்டவர் எடுப்பாரா. और वहाँ ऐसा गाना भी है अंग्रेजी में कि वो देते हैं और वो लेते हैं, देते हैं और लेते हैं। देखो, सोच लो, प्रभु देता है लेता है, देता, आज नौकरी देता है, कल नौकरी लेता है, आज गाड़ी देता है, कल लेता है. वो क्या हमसे खेलता है? It's not like that. Hallelujah. समझ में आ रहे? हालेलुया। सो योब के साथ ऐसा नहीं हुआ था. योग के साथ ये हुआ कि वो डर पे जी रहा था, उसके डर से उनका सारा चला गया. जब सब कुछ चला गया, उसके बाद उन्होंने बोला प्रभु ले लिया करके बोला. कुछ देर के लिए प्रभु शांत था, उसके बाद प्रभु को गुस्सा आ गया. उन्होंने बोला ऐसे मूर्ख की बात कौन बात कर रहा है, अभी मेरे सामने आओ. किन्होंने किस who made the heaven and earth, आकाश को कौन बनाया, पृथ्वी को कौन बनाया, पानी कहाँ से आ रहा है, ये सब तुम्हें पता है, आ जाओ तुम्हारे कस के बांध कर मुझसे बात करो, बोलता है प्रभु. उसके बाद योब सरेंडर है, सारी प्रभु मैं मेरे अनजान में बोल दिया, मुझे मत मार दो. आमीन। हालेलुया. हालेलुया। तो उसके बाद प्रभु क्या करता है, उनके पास जो भी था उसमें 2 गुना दे देता है. आमीन। आमीन। हालेलुया. इसमें खास बात ये है, அவன் கிட்ட இருந்தத அவன் முட்டாள்தனமா அவன் தொலைச்சான், ஆனா இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, 2 மடங்கு கொடுக்கறாரு. प्रभु के पास जो था वो अपनी मूर्खता से उसने खोया, लेकिन प्रभु ने उसे 2 गुना वापस दिया. That is my God. वो है मेरे खुदा. मेरी गलती से, मेरी कमी से जब मेरे पास कमियां होगी, वो आकर उसको ठीक कर मुझे 2 गुना देता है. आमीन। 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 हालेलुया. हालेलुया। और जब யோப் का ये सारे चल रहा था ना, ये बस महीनों के अंदर था. யோபோட இந்த பிரச்சனை எல்லாம் கொஞ்சம் நாட்கள் இல்ல கொஞ்சம் மாசம் தான். அது அழகா படிச்சீங்கன்னா தெரியும். யோபு 7:3, யோபு 29:2, யோபு 30:16, யோபு 30:70 எல்லாம் அது நாட்கள் மட்டுமே, வருடங்கள் அல்ல. और अगर आप देखोगे अय्यूब का पुस्तक पढ़ोगे तो आप समझोगे कि 7:3, 29:2 और 30:16 में और 27 में लिखा है कि कुछ दिनों के लिए होगा या फिर कुछ महीनों के लिए हो सकता है, लेकिन सालों साल नहीं था. हालेलुया. हालेलुया. But he was living 900 years plus, right? 140. Okay.
140 years அவன் 1000 வருஷம் வாழ்ந்திருக்கான். ஆனா அவன் பட்ட கஷ்டம் எவ்வளவு நாள்? கொஞ்சம் மாசம் இல்ல கொஞ்ச நாள். और वो है बहुत लंबा समय के लिए जिया, लेकिन जो है उसका जो समस्या आई थी वो थोड़े दिन के लिए होगा या फिर थोड़े महीनों के लिए था. हालेलुया. हालेलुया. क्लियर? समझ में आया? इसका मतलब यह है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि यहूब जैसा मेरा बीमार है, तो इसका मतलब क्या है? आप नहीं आपको थोड़े दिनों, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ठीक होना चाहिए. आमीन. एक्सपायरी डेट है ना? एक्सपायरी डेट दिन और महीनों के अंदर है. सालों साल तक बीमार पड़ के मैं यहूब जैसे मत बोलो. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. Praise God. Did we talk about Paul's thorn? Okay, no, I didn't tell this thing. मैंने ये नहीं बोला था पौलुस के गांटेक में. गांटे क्या होते हैं? गांटे लोग होते हैं. उसमें पढ़ो, they will be thorns and thistles in your eyes लिखा. Let's not go there. You do your study at home. Okay? पौलुस का तान में है, वचन है, पुराने नियम में लिखा रखा है, लोग आपके आंखों में गांटे लगेंगे. लोग आपके आंखों में कांटे जैसे चुभेंगे. हालेलुया. आपके विला, योर बेस्ट, और आपके फसली में कांटे जैसा रहेंगे. ओके. सो இந்த பழைய ஏற்பாட்டுல முள்ளு அப்படின்னு யார சொல்றாங்கன்னா மக்களை சொல்றாங்க. ஆண்டவர் வந்து மக்களை முள்ளு கூட ஒப்பிடுறாரு. மக்கள் வந்து உன் கண்ணில் முள்ளு மாதிரி இருப்பாங்க, உன்னோட விலால முள்ளு மாதிரி இருப்பாங்கன்னு பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதியிருக்கு. और जूना करार में जो है परमेश्वर जो है लोगों को एक कांटे के समान वहां पर संबोधित करते हैं कि लोग तेरे आंखों में कांटे जैसा रहेंगे और तेरे फसली में भी कांटे जैसा रहेंगे. நீங்க பைபிள் ஃபுல்லா 100 வாட்டி படிங்க, எங்கேயுமே முள்ளுங்கிறத வியாதி அப்படின்னு இல்லவே இல்லை. और आप बाइबल अगर अच्छी तरह से 100 बार भी आप पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीमार जो है वो कांटा नहीं है. எங்கேயுமே வியாதிய பைபிள் முள்ளுன்னு சொல்லல. பைபிள் முள்ளுன்னு சொல்றது மக்களை மட்டும்தான். और रोग को बाइबल कभी एक कांटा करके नहीं बोला है, लेकिन कांटा किसे बोला है? लोगों को बारे में बोला है. हालेलुया. हालेलुया. இப்ப பவுலுக்கு என்ன நடந்துச்சு? पौलुस को क्या हुआ? அவனை கப்பல்ல சேதப்படுத்தினாங்க, அவனை சிறையில போட்டாங்க, அவனை அடிச்சாங்க, அவனை உதைச்சாங்க, யூதர்கள் அவனை சேதப்படுத்தினாங்க. இப்படி மக்கள் பல விதத்துல அவனை துன்பப்படுத்தினாங்க. और उसकी जहाज में उसको वहां उसके नाश हुआ और लोगों ने उसकी नाश किया, यहूदियों ने उसकी नाश किया, ऐसा कई सारे लोगों ने उसकी नाश किया. हालेलुया. हालेलुया. அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு எனக்கு முள்ளு கொடுக்கப்படுது. எங்க பிரதருங்க இவருக்கு, ये मेरा भाई है, बहुत अच्छा है, पर मेरे बारे में बुरा बोलता है, वो पुलिस लेकर आता है, मुझे पीटता है, डांटता है, मुझे पीट कर टाउन मेरे मरने तक मुझे पीटता है. ये सब कौन करता है? मेरा अपना भाई है. इसलिए वो बोलता है कांटे गए. हालेलुया. हालेलुया. समझ में आ रहा है? Because Paul was also a Jew. क्योंकि पौलुस भी एक यहूदी था. हालेलुया. हालेलुया. So पौलुस के खिलाफ जितना भी किया था वो सब यहूदी लोगों का schemes of the Jew people only. Maximum of them. और बहुत सारे लोग जो यहूदी थे जो उसके विरुद्ध खड़े हुए थे. हालेलुया. हालेलुया. क्लियर? और कुछ छोटे छोटे चीज़ें 30, 31, 33 में वो सब आप खुद पढ़ लो, उतना बड़ा नहीं है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा. और 30 से लेकर 33 तक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप पढ़ो और आपको पढ़ने से समझ में आएगा. प्रभु कोई समय नहीं रखता, सबको एक ही समय में टिक किया था. और चाहे इनको कल टिक करूंगा, उनको परसों करूंगा, उनको कल परसों करूंगा करके समय नहीं रखता. सही है. हालेलुया. ओके. और पाप कुछ बोलते हैं 37 में लिखा है पाप, sin can stop healing. Do you think sin can stop healing? If sin cannot stop you from being saved, how can sin stop healing? आमीन. यदि पाप आपको छुटकारा पाने से, प्रभु को मानने से नहीं रुका, जो सबसे बड़ा चमत्कार है दुनिया में, ये सबसे बड़ा चमत्कार पाने से पाप आपको नहीं रुका था. सही है. तो अभी बीमार से चंगा होने को पाप कैसे रुकेगा? अंडरस्टैंड? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हारे अंदर पाप है, ये पाप निकालो तभी बीमार हो जाए, ठीक हो जाओगे. ऐसा
नहीं है। इसका मतलब क्या है? पाप कर सकते हैं? नहीं। ओके, प्रभु का जीवन हमारे अंदर है, वो हमें पाप करते बिना वो हमें he keeps us from sinning. और वो अपने को पाप से बचा के रखता है। Hallelujah. Hallelujah. So but your sin is not going to stop your healing. लेकिन आपका जो पाप जो है आपको चंगाई करने से वो रोक नहीं सकता। एक पापी है जिस जो बीमार पड़ता है, आप जाओ प्रभु को प्यार दिखाओ, उसको चंगा कर दो, और वो ऐसा हैरान हो जाएगा, प्रभु को प्यार को देखेगा और पाप करना रुकेगा, छोड़ देगा। सही है। यदि तुम जाओ ओके तुम्हारा पाप छोड़ दो तो फिर मैं चंगा कर दूंगा, तो वो क्या बोलेगा? अरे पहले ही मैं मुसीबत में हूँ, तुम आकर और ये बोलते हैं लोगों के ऊपर हाथ वैसे मत रख दो, जल्दबाजी में क्या नहीं करना है? हाथ नहीं रखना है। इसको लिखते हैं, पौलुस को लिखते हैं, பவுல் சொல்லிக்கிறாரு, திமோத்திட்ட சொல்லிக்கிறாரு, நீ வந்து என்ன பண்ணாத, அவசரப்பட்டு யார் மேலே என்ன பண்ணாத, कई வைக்காத। ऐसा लोग कहते हैं कि पौलुस ने तिमोती को लिखा है कि अपनी घाई में तू जाके किसी पे हाथ, सर पे हाथ मत रखना। அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? பவுல் வந்து ஒரு அப்போஸ்தலர், அவர் யாரு? திமோத்திங்கிற பாஸ்டருக்கு எழுதுறாரு। இந்த பாஸ்டர் என்ன சொல்றாரு? டேய் நிறைய சர்ச் இருக்குது, என்னது செல் மீட்டிங் இருக்கும், ஹவுஸ் மீட்டிங் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் நிறைய ஆளுங்க வைப்ப, யாரை எங்கே வைக்கிறேன்னு பார்த்து வைடா। और जो है वो जो है पौलुस जो थे एक प्रेती थे और तिमोती जो थे एक पासवान थे, और उन्होंने उसको लिखा है कि आप बहुत सारे जगह पे बहुत सारे हाउस मीटिंग होगा, दूसरा मीटिंग होगा, और जिसको जहाँ जो स्थिति में रखना है वो स्थिति में तू रख दे। அல்லேலூயா हालेलुया। அவசரப்பட்டு எவனையாவது வச்சு அவன் பொண்ணை கூட்டிட்டு போயிட்டான்னா அப்புறம் அந்த பாவத்துக்கு நீ பங்காயிருவ। और अगर तूने गलत आदमी को कहीं रखा तो वो कुछ गलत कर देगा, तो उसका पाप जो है तेरे सर पर आएगा। समझ में आ रहा है? So yes, Ata, like you know when soldiers are knighted, I don't know the word for knighted, KNITED, knighted. So ये soldier है, इनको soldier बनना है, तो मैं क्या करूँगा? ये sword रहेगा और इसको ये कूदने में आएगा, कुछ करेगा, मैं एक ऑफिसर हूँ, स्वॉर्ड इसके ऊपर रखकर तुम्हें आज से मैं इस बटालियन का कैप्टन बनाता हूँ, है ना? तो उसके बाद वो क्या बनेगा? वो कैप्टन बन जाएगा। सो यू अंडरस्टैंड? तो वैसा भी हम कलीसिया के अंदर किसी को जिम्मेदार देते हैं। आप संडे स्कूल देख लो, आप इस जगह का क्या देख लो, मिनिस्ट्री देख लो, विलेज मिनिस्ट्री दे दो, या क्या करते हैं? उसको नियम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हाथ रखो। अंडरस्टैंड? वही बोला था, एक अपोस्तल ने एक पासवान को लिख रहा है, तुम जब कार्य करोगे किसको कहाँ रखेगे देख के रखो, जल्दबाजी में किसी को मत दे दो, उसकी पाप में तुम क्या होगे? सौभाग्य रहोगे। ठीक है, पर लोगों के ऊपर हाथ रखने के लिए नहीं बोलता है, ठीक है? वो सीधा सीधा लिखा गया, लोगों के ऊपर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। सही है? थोड़ा बुद्धि से पढ़ना है बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।